Hello everyone, this is Ruchika, tarot card reader and spiritual healer. So today it's not a pick a card reading. I'll be doing reading zodiac wise. So now is the turn for the Cancerians. So I'll be reading for the people who are born between 21st of June to 22nd of July. So I'll be using two decks here. I'll be using a Rider-Waite deck and I'll be using Angel Oracle cards for the guidance. Plus I'll be taking out two rune stones to know about your January month, how your January month 2021 will be. So let's take out three cards. The first card will denote the first 10 days, the next card will denote the next 10 days, and the last card will denote the next last 11 days of January, that is from 21st to 31st. All right, and plus I'll be taking guidance from the angels and what the rune stones have for you. So let's take out three cards for January month for Cancerians, that is the people who are born between 21st of June to 22nd of July. So all right, I have got, wow, you have got Four of Swords. I love this card. Okay, next card you got is Four of Pentacles. Very nice. Both four. Okay. And the third card you got is Six of Pentacles. Okay, lovely cards. So without starting my reading, I really want to tell you that your month is going to be awesome, Cancerians. No obstacles, no hurdles. बहुत easily आपका that will be a very easy going month, I will say, for you. Now let's see कि angels की क्या guidance है for the month of January 2021. Okay, so what do you desire? Okay, now let me take two rune stones. All right, so the rune stones, first rune stone which you have got is this. I hope you can see. And the second one is this one, a stick-like structure which is also known as eyes. Okay, so let's begin with this card. So this is Four of Swords, wand, sorry. So ये card जो है ये, this is card of celebration, joy, happiness coming your way. Maybe आपका कोई your construction is over and you are ready to move into your new house is what I feel. Maybe you may feel a friend, you may meet a friend after many years. There might be a reunion between friends, between family. शायद आपकी family का कोई काफ़ी टाइम से कहीं जैसे अब्रॉड गया था या बहुत टाइम से यू वर नॉट एबल टू मीट, सो आपको वो कहीं ना कहीं मिलेंगे. और नया घर, नई चीज़ें, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट. अगर रोका होने के चांसेस हैं और यू मे बी कमिटेड टू अ रिलेशनशिप, आप कमिटमेंट देंगे. बहुत टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन कोई घर चल रहा था, सो वो कंस्ट्रक्ट होगा. यू विल गेट सपोर्ट ऑफ एवरीवन, पूरी फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, सब कुछ है फर्स्ट 10 डेज में. कैंसेरियंस आप लोगों के पास सब कुछ है फर्स्ट 10 डेज में. सो बहुत अच्छा टाइम है ये टू गेट फ्रूटफुल रिजल्ट्स. जो भी आप काफ़ी टाइम से अगर रिलेशनशिप को लेके चल रहे थे या कुछ भी, तो दिस इज़ द टाइम कि अब आपको मैरिज के लिए हाँ कर देनी चाहिए, या जिस सोलमेट के बारे में आप सोच रहे हैं, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू एज ऑफ नाउ. सो बहुत अच्छा कार्ड है. Now the next card, next 10 days from 11 Jan to 20 Jan. This is Four of Pentacles. Four of Pentacles, मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि you may get a gift from someone. या तो जैसे आप शादी पे गए थे, जैसे होता है कि कुछ
पैसे मिलेंगे, जैसे हाउ टू एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल आपका रोका हो जाता है तो जैसे कंगन पहनाते हैं लड़कियों को या बॉयज़ को कुछ गिफ्ट किया जाता है, उस टाइप में कुछ फैमिली से मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, रिलेटेड टू योर फैमिली, क्योंकि फाइनेंसिस तो यू कैन अर्न मनी फ्रॉम योर जॉब एज वेल, यू कैन अर्न मनी फ्रॉम योर बिजनेस एज वेल, बट ये जो कार्ड्स मुझे जो व्हाट आई कैन फील, व्हाट आई कैन हियर इज दैट आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको आपकी फैमिली के थ्रू आने के चांसेस हैं। सो और सॉरी एक्सक्यूज मी, या फिर आपको जैसे आपका जो हाउस है, आपने कोई पुरानी अपनी प्रॉपर्टी बेची है या आप बेचना चाह रहे हैं, उससे आपको प्रॉफिट हुआ है। सो कुछ ना कुछ रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, ऐसा कुछ आ रहा है कि कुछ आपको ऐसा फाइनेंशियली फायदा होगा। पैसों की आपके पास कमी ऐसे भी दिख नहीं रही है मुझे। यू हैव अबंडेंस, मतलब जितना ज़रूरत है उतना तो डेफिनेटली यू हैव गॉट। और लेकिन कहीं ना कहीं कई बार आप थोड़ा कंजूसी ज़्यादा ही कर जाते हैं। आई नो इट्स good to save money, it's good to spend your money wisely, but then probably I think you are little pretending to be a miser sort of thing. So थोड़ा सा जितना आप स्पेंड करेंगे, देखो नेक्स्ट इस कार्ड से रिलेटेड ही नेक्स्ट कार्ड आया है आपका। सो जो कार्ड आपको बता रहा है कि यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, ये कार्ड कहीं ना कहीं बैलेंसिंग का कार्ड है, कि अगर ऐसा नहीं है कि 10 रुपीज़ आ रहे हैं तो यू नीड टू स्पेंड 8 रुपीज़ और यू नीड टू स्पेंड 9 रुपीज़, ऐसा नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वो भी नहीं करें। सो ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बता रहा है कि यू नीड टू डू सम चैरिटी, कुछ गुड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि मनी तो है डेफिनेटली आपके पास है, सो जिसको ज़रूरत है उसको दीजिए। या फिर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से पैसे आने के चांसेस हैं। मतलब सारे कार्ड्स जो हैं आपको फाइनेंशियली बता रहे हैं कि फाइनेंशियली तो आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा, इमोशनली, फाइनेंशियली इस वक्त आपकी सारा जो ये जनवरी का मंथ है बहुत बहुत स्टेबल जाने वाला है। मुझे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। पहले सेलिब्रेशन है, फिर सेलिब्रेशन के बाद फाइनेंशियली आपका फ़ायदा होने वाला है। न्यू हाउस आपका हो सकता है, न्यू जॉब में आप लोग एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल कुछ भी आप इन 10 डेज़ में करने वाले हैं उससे आपको नेक्स्ट 10 डेज़ में फ़ायदा होने वाला है, और लास्ट 10 डेज़ में भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन लास्ट 10 डेज़ में आपको ये गाइडेंस आ रही है कि यू नीड टू हेल्प अदर्स ऑल्सो, आपको बाकियों की भी हेल्प करनी है। जो आपके आसपास आपको जिनको लगता है दे नीड फूड, दे नीड ब्लैंकेट, बिकॉज इट इज़ कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड। सो किसी को ब्लैंकेट चाहिए, जो मुझे अभी फील हो रहा है, जो मुझे अभी वाइब्रेशंस आ रही हैं, एंड व्हाट द एंजल्स आर सेइंग कि अपने आसपास देखिए, अगर किसी को भी ब्लैंकेट की ज़रूरत है उसे दीजिए, या फिर आपके पास किसी के थ्रू भी somebody may be generous to you, और आपको वहाँ से भी मनी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। लवली लवली कार्ड्स, और जो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके कैंसेरियन। सो ये कार्ड्स किसी भी अभी तक ज़ोडिक में इतने अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं। सो ऑल द बेस्ट, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू पीपल। Let's see what the angels are saying. What do you desire? You now have the opportunity to write the script according to your heart's true desire. Once you clearly decide upon your true desires and know that you are ready to deserving of them, they'll rush into. तो एंजल्स बोल रहे हैं कि पहले खुद आप क्लियर कर लो कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। अपने जो डिज़ायर्स हैं उनको लिख लीजिए, और लिख के डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना, इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ अफर्मिंग, दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ मैनिफेस्टिंग। जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो जो रिटर्न वर्ड्स का इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। सो बहुत अच्छा होगा कि अगर अपने डिज़ायर्स को लिखिए, क्योंकि गॉड जो है ही इज़ रेडी टू गिव यू एवरीथिंग, एंजल्स आर देयर विद यू, वो आपको देने के लिए रेडी हैं। लेकिन पहले आप खुद डिसाइड कर लीजिए क्लियरली कि व्हाट योर ट्रू डिज़ायर्स आर। सो और जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं, सो वो फटाफट आपकी लाइफ में भाग कर वो चीज़ें आपकी लाइफ में फटाफट से एंटर करेंगी। जैसे ही आप डिसाइड कर ले कि व्हाट डू यू वांट, यू नीड टू क्लैरिफाई योर डिज़ायर्स, एंड प्लस यू नीड टू रिलीज एनी गिल्ट और फियर रिगार्डिंग आस्किंग। कई बार ऐसा होता है कि हम वी डू नॉट
ट्रस्ट गॉड, वी डू नॉट ट्रस्ट एंजल्स, हमें ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसे आपकी हेल्प होगी? सो यू नीड टू ट्रस्ट गॉड, यू नीड टू ट्रस्ट एंजल्स, और चीज़ें आपके पास मैजिकली आएंगी. यू हैव गॉट मैजिकल कार्ड्स. मैं कैंसर वालों को यही बोलूँगी, यू हैव गॉट मैजिकल कार्ड्स. बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके. नाउ लेट्स कम टू दिस रून स्टोन. ये रून स्टोन कहीं ना कहीं बताता है कि समटाइम्स यू आर बीइंग रिजिड. कई बार आप रिजिड हो जाते हैं चीज़ों को लेके. रिजिड नहीं होना है, जैसे बोलते हैं ना कि जिद पे अड़ जाना या रिजिड हो जाना चीज़ों को लेके, सॉरी, तो वैसे नहीं होना है. डोंट बी रिजिड. जैसे कि आइस होती है ना कि जमी रह जाती है, ढीठ जैसे बोलते हैं, स्टब्बन. सो वैसे नहीं होना है. डोंट बी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल. थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अपना नेचर कीजिए. ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचता हूँ तो ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं है. कई बार दूसरों की भी सुननी पड़ती है. सो यू नीड नॉट टू हैव बीन सो रिजिड. सो इतना रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है आपको इस मंथ में, जनवरी में. और ये जो साइन है यही बताता है कि यू आर डेस्टिन्ड टू मीट, टू पीपल विल मीट. जैसे कि ये कार्ड भी बता रहा है, सी हाउ द कार्ड्स एंड रून स्टोन्स रेजोनेट. ये कार्ड भी सेलिब्रेशन का, सोलमेट के मिलने का, आपकी मैरिज का कार्ड है. सो ये भी रून स्टोन यही बताता है कि ये दो लोग आपस में जुड़ने के लिए ही बने हैं. दे आर द सोलमेट्स. दिस इज द रून स्टोन ऑफ फेट. ये किस्मत है, डेस्टिन्ड हैं चीज़ें. सो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज द things are destined for you. So all the best, Cancerians. Very very nice cards for you. I hope ki this resonated with you. Please take the things which will resonate and please leave the things which will not resonate, as this is a general reading, so it might not resonate with some of you. So do share, subscribe and like my channel in order to get notified with my upcoming videos. So all the best to all of you and happy new year. All the best. Bye bye.